Namaskar, myself JVN Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan, India. Learners, today we will discuss on session name is State Secretariat, Introduction and Needs. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Let's see. In English, over the year, Rajasthan has emerged as a major tourist destination for domestic and foreign tourists in India. At the present time, administratively, Rajasthan is divided into 33 districts. Last district was Pratapgarh. So, in current time, 33 districts in Rajasthan. Each state has its own secretariat, which is the highest ranks of the state administrative setup by the state government, offering locus for the exercise of authority. The secretariat is the house of secretaries. All secretaries have offices here. The secretariat is used to refer to the premises of the departments whose political heads and are ministers, while the administrative heads are the secretaries of the government. The entire administrative machinery of the state is divided into several departments. The secretariat is a group of all these departments. The minister is head of these departments and is accountable to the legislature for the activities that take place in it. Ministers below the secretariat are assigned several career civil servants in each department who carry out the orders of their political mentors, advise them and assist them by providing the necessary information to face the legislature and its committees. A secretariat department is different from an executive department. The latter is the executive organization of the government and has its top a functionary, generally known as the head of the department. The agriculture department in the secretariat, for instance, is headed by the secretary agriculture, but has the director of agriculture as its head of the department. The latter is subordinate to the former. The head of the department is generally a specialist and a secretary is a journalist civil servant. Thought there are a number of executive departments which are headed by journalists, and conversely, a few secretariat departments are headed by specialists. The secretariat is divided into a number of departments. The exact number of departments varies from state to state.
For instance, Sikkim, as of 1989, had only 15 departments, while most of the other states have 30 to 40 departments. But there are few departments which are common to all states wise. General administration, personnel, home, finance, agriculture, public works, industries, irrigation, health, education, law, medical, planning, information, rural department, and transport, revenue, etc. Let's see needs of secretariat. Political ministers are short of time, therefore administrative functions and decisions are carried out by the officers of the secretariat they implement first. Second is, political ministers are popular among the general public, but they do not have full knowledge of governance. That is, they have not skills and knowledge, so the secretariat officers help them. Next, ministers and government of different parties are unstable, while the secretariat is a permanent system. Therefore, the administration, through that secretariat, continues its work even at the time of the fall of the government. Next point, the secretariat serves as a consultant and source of information in high-level policy, planning, programs, and lawmaking. And next need is all the work related to the formation of schemes, utilization of resources, control and direction of administration, and evaluation are done by the secretariat. Let's see in हिंदी. स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है, टॉपिक है, उसका नाम है राज्य सचिवालय, प्रस्तावना तथा इसकी आवश्यकता क्या है. देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी प्रस्तावना को लेकर, एक परिचय सचिवालय के बारे में. पिछले वर्षों में राजस्थान भारत में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर आया है, ये हम सभी जानते हैं. वर्तमान समय में प्रशासनिक रूप से राजस्थान 33 जिलों में बटा हुआ है. अभी हाल ही में जो 33वां जिला बना था वो प्रतापगढ़ था. ये बहुत बार, कई बार कंपटीशन में प्रश्न आता रहता है, तो इस दृष्टि से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा. प्रत्येक राज्य का अपना एक सचिवालय होता है और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण की कवायद के लिए राज्य प्रशासनिक ढांचे का एक सर्वोच्च सोपान है. सचिवालय एक सचिवों का आलय है या घर है, जहाँ पर सभी सचिव रहकर अपना काम करते हैं. यहाँ सभी सचिवों के कार्यालय होते हैं, यहाँ पर सचिव होते हैं और उनके नीचे काम करने वाले अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं. सचिवालय का उपयोग उन विभागों के परिसर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिनके राजनीतिक प्रमुख मंत्री होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख सरकार के सचिव होते हैं. राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी कई विभागों में विभाजित होती है और इनमें होने वाली गतिविधियों के लिए विधायिका के वो प्रति जवाबदेह होते हैं. सचिवालय के नीचे मंत्रियों को प्रत्येक विभागों में कई कैरियर सिविल सेवक तैनात किए जाते हैं जो अपने राजनीतिक मुखियाओं के आदेशों को पूरा करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं और विधायिका और उनकी समितियों का सामना करने के लिए आवश्यक जानकारी
प्रदान करते हैं। क्योंकि देखिए कानून और नीतियाँ बनती हैं उसके लिए सूचना और आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है और उसमें सचिवालय उनकी सहायता करता है। एक सचिवालय विभाग एक कार्यकारी विभाग से अलग होता है। कार्यकारी विभाग निदेशालय को बोलते हैं। सरकार का कार्यकारी संगठन है और इसके शीर्ष में एक कार्य है जिसे आमतौर पर विभाग के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए सचिवालय में कृषि विभाग का नेतृत्व सचिव कृषि के द्वारा किया जाता है, मतलब उसी के नियंत्रण और मार्गदर्शन में वो विभाग काम करता है, लेकिन इसके निदेशन के रूप में कृषि निदेशक काम करता है। डायरेक्टर जो होता है वो जो विभाग के द्वारा जो कानून बनते हैं, नीति बनती है, उनको लागू ये करवाता है निदेशक। बाद में इनके जो जितने भी जो भी काम हैं उन सब का कहीं न कहीं ब्यौरा रिपोर्ट बनाकर ये वापस कृषि विभाग को सौंपता है। कौन? निदेशालय। विभाग के प्रमुख आमतौर पर एक विशेषज्ञ होता है और एक सचिव एक सामान्य नागरिक सेवक होता है। हालांकि कई कार्यकारी विभाग हैं जो सामान्य लोगों के नेतृत्व में है और इसके विपरीत कुछ सचिवालय विभाग विशेषज्ञों के नेतृत्व में काम करता है। सचिवालय कई विभागों में विभाजित होता है। विभागों की सही संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं 1979 मतलब 1989 इस रूप में सिक्किम राज्य में केवल 15 विभाग थे, जबकि अन्य राज्यों में अधिकांशतः 30 से 40 विभाग थे। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो सभी राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक, गृह, वित्त, कृषि, लोक निर्माण, उद्योग, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, चिकित्सा, योजना, सूचना, औद्योगिक, ग्रामीण विकास, परिवहन और राजस्व इत्यादि। ये सभी जितने भी जो भी राज्य हैं भारत में उनमें पाए जाते हैं विभाग। अब हम इसके बाद में बात करते हैं सचिवालय की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या कारण है। क्योंकि देखिए किसी न किसी के कारण किसी न किसी का होना तय होता है। तो जो सचिवालय है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी या क्या उसका महत्व है, वो एक ही बात है। क्वेश्चन कैसे भी कंपटीशन में घुमा फिरा के आ सकता है। तो हम एक एक पॉइंट वाइज इसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहली जो आवश्यकता की बात है कि सचिवालय की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है राजनीतिक मंत्रियों के पास समय का अभाव होता है। ये हम सभी जानते हैं। मंत्रियों को बहुत से काम करने होते हैं, उद्घाटन में जाना होता है, भाषण देना होता है, समय का अभाव होता है। इसलिए प्रशासनिक कार्यों और निर्णय को सचिवालय के अधिकारी संपन्न करते हैं। मतलब इन्हीं की सहायता से वो मंत्री अपना काम करते हैं, क्योंकि उनके पास उस समय की कमी है। ठीक है। अब दूसरा जो महत्व है या दूसरी जो आवश्यकता पड़ती है सचिवालय की, दूसरा ये कि राजनीतिक मंत्री जन साधारण में लोकप्रिय तो होते हैं, परंतु उन्हें शासन संचालन का पूरा ज्ञान नहीं होता है, अर्थात वह कौशल और ज्ञान प्राप्त नहीं किए होते हैं। इसलिए सचिवालय के अधिकारी उनकी सहायता करते रहते हैं। क्योंकि देखिए स्किल जो है, नॉलेज जो है, वो किनके पास में होगी? प्रशासनिक अधिकारियों के पास में, लाइक IAS और RAS एक्सेट्रा। अब ये सभी कहाँ होते हैं? आपके सचिवालय में। उनके ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, इसलिए उनके द्वारा इनकी मदद की जाती है आपकी। इसके बाद में अगला है कि मंत्रीगण तथा विभिन्न दलों की सरकारें अस्थिर होती है। ये हम जानते हैं। कई बार जो मिली जुली सरकारें होती हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती, बीच में ही भंग हो जाती है। जबकि सचिवालय क्या है? स्थायी, परमानेंट एक क्या है? सिस्टम है, एक व्यवस्था है। इसलिए सरकार के पतन के समय भी इस सचिवालय के द्वारा प्रशासन निरंतर अपना काम करता रहता है, बगैर रुके हुए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। इसके बाद में अगला जो बिंदु है, अगला जो पॉइंट है, वो है उच्च स्तरीय नीति योजना, कार्यक्रम और कानून निर्माण में सचिवालय एक तरह से परामर्श देने का काम करता है। एक तरह से उसके पास सूचनाएं देने का काम होता है,
क्योंकि जितने भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरी, उनके सचिव यही होते हैं और इन सब के पास में अपने अपने विभाग की सूचनाएं होती हैं। इसलिए आसानी से जब कोई योजना बनती है, नीति बनती है, तो कहीं ना कहीं सचिवालय उसमें हेल्प करता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले, योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के सदुपयोग, प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण रखना हो और निर्देशन तथा मूल्यांकन संबंधी जितने भी जो भी काम राज्य में होते हैं वो सभी आपके सचिवालय के द्वारा ही संपन्न होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सी रिपोर्ट यहाँ आती हैं, उन रिपोर्टों के बिहाफ पर नई योजनाओं में जो मूल्यांकन का काम है वो, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका सदुपयोग, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके किसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी? सचिवालय के द्वारा। तो आज हमने लर्नर्स क्या देखा कि राज्य में जो सचिवालय है वो क्या है, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि जो सचिवालय है उस सचिवालय में राजनीतिक मुखिया और उसके अधिकारी, मतलब जितने भी मंत्री हैं, सहायक, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो शिखर पर है राज्य में, मुख्य सचिव और उसके साथीगण, उसके सहायता करने वाले अधिकारी, कौन हो गए? सचिव। उन सब के जो ऑफिस हैं, उन सब के जो कार्यालय हैं, वो सब कहाँ पर हैं? सचिवालय में। तो कहें इनकी जो सचिवालय है वो राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि न केवल नीति निर्माण करने में बल्कि बनी हुई नीतियों को क्रियान्वयन में भी यह मदद करता है। तो बच्चों बहुत बार, कई बार ये कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है कि सचिवालय का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो आप क्या बताएंगे? नीति निर्माण में, ठीक है, नीतियों को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और देखिए क्रियान्वयन जो है उस पर भी नियंत्रण यही रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके अधीन निदेशालय काम करते हैं, डायरेक्टेड काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये नीति बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। तो आज का जो वीडियो है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है और आप आगे राज्य सचिवालय के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को देखते रहें। आज हमने इंट्रोडक्शन एंड नीड की बात करी, प्रस्तावना और आवश्यकता की बात करी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राज्य सचिवालय है राजस्थान में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मतलब संरचना क्या है, उसका संगठन कैसा है, वो बात करेंगे। और इसके बाद में फिर ये राज्य सचिवालय क्या काम करता है, इसकी क्या क्या भूमिका है, ठीक है, उसका वीडियो भी हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए निरंतर हमारे इन वीडियो को देखते रहें और कंपटीशन की तैयारी के लिए आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है, जो कि आपके आगे जाके काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।